टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। I am Halima Sadia with Jammu Kashmir Weekly News Bulletin at TAG TV. Our news bulletin covers the developmental, cultural and tourism aspects of Jammu and Kashmir along with public events of everyday life there. This news bulletin is presented to you with the courtesy of ANI. Subscribe TAG TV, press the notification button. You can donate to support our journalism through clicking donate icon on our YouTube channel. This week's bulletin features the following headlines. A 9-day Bharat Darshan study tour flagged off in Srinagar. Gulmarg offers an unforgettable experience for tourists during the winter months. Government schools in Budgam offers free winter coaching to students. A talented 12th class student from Srinagar has achieved a significant milestone in the world of chess. Solidarity gathering organized for displaced Kashmiri Pandits. A 9-day Bharat Darshan study tour flagged off in Srinagar. The tour took 30 students on an enlightening journey from Srinagar to Bengaluru, Mysore and Delhi. The aim was to provide the youths with the unique opportunity to explore different cultures, learn about the nation's diversity and experience the rich heritage of India beyond their immediate surroundings. एक मिनट रोक के रखो, एक मिनट आप पीछे चलो, पीछे ये और श्री रविंद्र कुमार समानिया की अध्यक्षता में ऑफिसर्स आज हम सभी लोग मुख्य उद्देश्य है सर, इसमें टोटल 28 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 हॉस्टल वाले के टोटल 20 छात्र हैं और 1 वार्डन है। इनको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इस बार जो इस टूर का रहेगा टारगेट, वो रहेगा साउथ भारत में। साउथ भारत में सबसे पहले ये बैंगलोर जाएंगे, मैसूर जाएंगे, कर्नाटका के राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद इसरो में भी जाएंगे, जो और भी विभिन्न संग्रहालय हैं उनमें जाएंगे। उसके बाद फिर ये आएंगे दिल्ली आएंगे। दिल्ली में फिर इनके विभिन्न कार्यक्रम बने हुए हैं। साथ में सशस्त्र सीमा बल के जो महानिर्देशक है उनसे भी इनका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। फिर वहां से मिलकर फिर यहाँ पर आके क्लोजिंग इनकी होगी। ये कुल 9 दिनों का कार्यक्रम है टोटल। एक मिनट रोक के रखो, एक मिनट रोक के रखो। आप पीछे चलो, पीछे ये छोड़ दो, ये पहले 2 छोड़ दो। इनका सिक्योरिटी का आदमी हम आज एसएसपी 10 बटालियन की तरफ से टूर दर्शन पे जा रहे हैं और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें एक मौका दिया, हमें आगे स्टेट देखने का, आगे कैसा माहौल है, पीने का, खाने का, कैसे रहन सहन है। इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें इतना मौका दिया। Gulmarg, a popular hill station and ski resort of Jammu and Kashmir, offers an unforgettable experience for tourists during the winter months. It remains popular for winter activities such as skiing, snowboarding and snowshoeing.
बहुत अच्छा फुल एंजॉयमेंट आया हमको यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ, ऐसा लगता है कि हम इस जन्नत में आ चुके हैं। यहाँ पर स्लेज राइड में अगर बात करते हैं हम, तो इसको बहुत फुल एंजॉयमेंट लिया हमने। ऐसा लग रहा था हम खुद ही वहाँ पे चले जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा था, फुल एंजॉयमेंट लिया हमने। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मैं अपने यूपी वासियों से कहना चाहूँगा, यहाँ अधिक मात्रा में आए, ठंडी में बड़ा मजा आता है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पड़ा हुआ है और मेरे साथ चल के मेरे मित्र मुजीब भाई हैं, जुनैद भाई हैं, सारे लोग आए हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। जो ये इससे पहले यहाँ पे बर्फ गिरी है, इससे हमको फायदा मिला। यहाँ पे हम बोलते टूरिस्ट आना चाहिए, तो हमको ये काम मिलेगा यहाँ पे। हम इसी से खुश है, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस खाली टूरिस्ट। बहुत अच्छा। अमिस ना इशफाक साहब, अमिस कर ना मोन शक कि अच्छे इस पे मसला ऐसे मोन beste soort van mooitjes die. In view of high fee structure in private coaching institutions and to provide education, Department of School Education started an initiative to provide coaching to all students during winters at government schools in Budgam. Students of poor backgrounds can join in the coaching without any problem. This initiative is being appreciated by every corner of the students. Multiply 182. 4 categories of these microorganisms. Hi, buddy. आएंगे 7 2 और 14 14 plus 4 is equal to 18. So when we multiply this, जब हम इसको multiply कर लेंगे 26 into 7 that is equal to 181. 26 and 91 का आपको अब आपको multiply करना है 182 को किससे multiply करना है 30 multiply 182 by 30. We will do here multiplication. I will do here. Now अब हम निकालेंगे. Now 90 का है आपका नंबर. क्योंकि घर के एक
यहाँ पर जो वेल क्वालिफाइड ट्रेन जो होते हैं उस्ताद हमारे, तो वो अच्छी तरह से इनको पढ़ाते हैं, बराबर इनको क्लासेस लेते हैं 11 बजे से 3 बजे तक। हमने यहाँ पर 3rd प्राइमरी से 10th तक यहाँ पर हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे जो भी घर में गरीब लोग जो होते हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट ट्यूशन में उनको देना पड़ता है, यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है। बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड ये हमारा स्कूल है, और यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सीओ साहब का, अपने डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने हमें इजाजत दी यहाँ पर विंटर ट्यूटोरियल खोलने का। सर उसके मद्देनजर हमने ये ठीक समझा कि विंटर ट्यूटोरियल्स खोल दें, यहाँ पर इन बच्चों को दूर दराज के इलाकों में फ्री कोचिंग मिल जाए। जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, उसके मुताबिक हम विंटर ट्यूटोरियल्स खोल रहे हैं। टोटल फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी करते रहेंगे हम, लेकिन हमने वो ट्यूटोरियल शुरू किए हुए हैं। जो कि हमारे पास दूर दराज के इलाकों में बात करें तो खाग में भी है, नारबल में चल रहे हैं, चरारे शरीफ में चल रहे हैं, और सोईबुक जोन में चल रहे हैं, मागाम में भी हैं। यहाँ से हमें रिक्वेशन आ रही है और वहाँ पर हम विंटर ट्यूटोरियल अपने खोल रहे हैं। और हर विंटर ट्यूटोरियल में हमें जहाँ तक रिपोर्ट आई है कि 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। Categories of these microorganisms. One is called bacteria, second one is called fungi, third one is called protozoa, third one is called protozoa, and fourth one is called algae. With this example का detail वो थोड़ा रिवाइज। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सेटअप लिया है कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे विंटर कोचिंग जो है खोली है। हम घर में बैठे रहते थे और हम बहुत बोर होते थे। हमारे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे ये कहीं पे ट्यूशन जाए, पढ़ने जाए, क्योंकि हम घर में बैठते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, उससे हमारे जो है टाइम वेस्ट होता था। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो कि बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कूल में ही ट्यूशन खोला है, जो कि एकदम फ्री है। यहाँ पे कोई फीस नहीं देना पड़ता है हमको, जो बिल्कुल फ्री है। A talented 12th class student from Srinagar, Miss Minha Jan, has achieved a significant milestone in the world of chess. With dreams of becoming a grandmaster, Minha continues to work hard, determined to make her mark in the chess world. मेरा नाम मिन्हा अयाज़ है, मैं खानियार से हूँ, श्रीनगर से। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है कहाँ पे? मेरी बेसिक एजुकेशन पहले स्कूलिंग मेरी 10th तक हुई जामिया मिलिया इस्लामिया में। आफ्टर दैट 11th 12th जो था मेरा गर्ल्स हायर सेकेंडरी खानियार स्कूल में था। आफ्टर दैट जो मेरी चेस जर्नी है वो मैं 5 इयर्स की थी। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ चेस में। मेरे जो फादर थे वो चेस खेलते थे, तो आफ्टर दैट मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं ये लोग।
तो आफ्टर दैट मैंने उनको बोला कि मुझे भी खेलना है आपके साथ। उन्होंने बोला आपको तो नहीं आता, आप कैसे खेलोगे मेरे साथ? तो मैंने बोला मैं खेलूंगी। उन्होंने कहा कि वो एस्टॉनिश हो गए कि मैंने तो कुछ नहीं सिखाया इनको भी, बट मैं उनकी गेम्स देखती थी, मैं एनालाइज करती थी कि वो क्या खेलते हैं। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं खेलूंगी। आफ्टर दैट जब मैंने वो खेला तो उनने मुझे उसके बाद स्किल्स सिखाए, बहुत सारी स्किल्स सिखाए, मुझे प्रैक्टिस कराई चेस में। पहले मैं टूर्नामेंट्स में नहीं गई, वरना मुझे एट द एज ऑफ 5 आता था खेलना। उसके बाद मैंने अराउंड 2021 से स्टार्ट की मेरी चेस जर्नी, और उसके बाद मैंने हमेशा गोल्ड मेडल्स दिलाया आज तक इंडिविजुअल लेवल पे। तो मैंने हमेशा स्किल्स डेवलप किया अपने इसमें। मैंने रिसेंटली कोलकाता में अपना नेशनल्स जो है वो खेले थे इस साल के। मैं डबल नेशनल प्लेयर हूँ चेस में। आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मतलब इसकी जोड़ का जम्मू एंड कश्मीर में कम से कम कोई नहीं है। तो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अब तो ये इस पर निर्भर है कि ये कहाँ तक जा सकती है। आपकी तरफ से पूरा? मेरा तरफ से पूरा सपोर्ट है। कितनी खुशी हुई जब आपने सुना कि ये तो ज़रूरी बात है। खुशी तो अपना औलाद कुछ करके दिखाए तो माँ बाप को तो खुशी होती है। 19th January marked the 35th anniversary of Kashmiri Hindu Pandit Forced Exodus Day. Kashmiri Valley witnessed a forced exodus on its nearly entire Kashmiri Hindu minority in 1990. आज से 35 साल पहले आज ही के दिन यानी 19 जनवरी को यहाँ पर एक कालापन का दौर शुरू हुआ था, जिस दौर में हमारे बरादरी हिंदू लोग यहाँ से जम्मू चले गए थे, भाग गए थे। जब मेरी दादी या मेरी नानी या और किसी ने ये घर छोड़ा होगा, घर छोड़ना आसान नहीं होता, घर छोड़ने का दर्द जो है वो आज भी हमारे सीने में। पता नहीं किन हालात में वो यहाँ से भाग गए, लेकिन हमारी तड़प है कि वो यहाँ पर वापस आने चाहिए। आज के दिन हम यहाँ कश्मीरी हिंदू बिरादरी और कश्मीरी मुसलमान बिरादरी फिर एक बार मिले और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उन फोर्सेस को जिन्होंने हमारी सोसाइटी को तोड़ना चाहा। आज 19 जनवरी है और आज के दिन हम जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी जो हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं जिन्हें 1990 में दहशतगर्दों ने मार के अपने घरों से भगा दिया था, उन्हीं की याद में आज का दिन हम मनाते हैं। इस दिन हम उन विक्टिम्स को, उन शुहदाओं को याद करते हैं जो दहशतगर्दी का निशाना बने, मासूम होकर उन्हें अपनी जान का अतिया देना पड़ा और अपने घरों से भागना पड़ा। इस दिन को हम कश्मीरी हिंदूज फोर्स्ड एक्सोडस डे से मनाते हैं। आज हम मालूम मागाम आए हैं। हमारे पीछे जो खंडरात आपको दिख रहे हैं, ये एक ज़माने में एक आबाद गांव था और हालांकि इस गांव में जो ये खंडरात है ये नेचुरल क्लैमिटी की वजह से टूट गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्हें दहशतगर्दों ने तोड़ा, दहशतगर्दों ने उन्हें मारा और उस दहशतगर्दाना सोच ने हमारे कश्मीर की सोसाइटी को तार तार किया। कश्मीरियत जिसे हम बड़े फख्र से अपनी एक लेगेसी, अपनी एक विरासत मानते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें हजारों साल से विरासत के तौर पे दी है, उस कश्मीरियत को पार पार किया और हमारी सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश की
आज के दिन हम यहाँ कश्मीरी हिंदू बिरादरी और कश्मीरी मुसलमान बिरादरी फिर एक बार मिले और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उन फोर्सेस को जिन्होंने हमारी सोसाइटी को तोड़ना चाहा। कश्मीर एक है, कश्मीर में रह रहे मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, मिलनसार, मोहब्बत, उखवत, भाईचारे से। उस भाईचारे को हम हर सू कायम दायम रखेंगे और यही आज के इस दिन की मैसेज रहेगी कि हमारे कश्मीर में हमारे मुसलमान बिरादरी के साथ हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी, बौद्ध बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी या मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप से हम एक साथ रहते हैं और हमारी सोसाइटी में दहशतगर्दी का कोई मुकाम नहीं है। हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, उन एलिमेंट्स की मजम्मत करते हैं जिन्होंने हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी को मारा और अपने घरों से निकाल दिया। मैं ठीक उस जगह पर यहाँ मालमू की अपनी बस्ती में मौजूद हूँ जिसका नाम मालमू है। ठीक उस जगह पर जहाँ हमारे पंडित बरादरी के लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि आपको मालूम ही है, आप भी इसी स्टेट के रहने वाले हैं। आज से 35 साल पहले आज ही के दिन यानी 19 जनवरी को यहाँ पर एक कालापन का दौर शुरू हुआ था, जिस दौर में हमारे बरादरी हिंदू लोग यहाँ से जम्मू चले गए थे, भाग गए थे। पता नहीं किन हालात में वो यहाँ से भाग गए, लेकिन हमारी तड़प है कि वो यहाँ पर वापस आने चाहिए। हमारी दिलों की ख्वाहिश है और उनकी भी ख्वाहिश है, वो भी चाहते हैं। बीच बीच में वो कभी यहाँ हमसे इंटरेक्शन करते हैं, आते हैं, हमसे मिलते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही मौजूद है, किसी ने इनके साथ नहीं छेड़ा है। आप खुद भी देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। और हम दिल की गहराई से उनका इस्तेमाल चाहते हैं यहाँ पर। और हम इस वक्त की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो उमर साहब की गवर्नमेंट है इस वक्त, और एलजी साहब जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके उनके लिए ऐसा रास्ता निकाल दे ताकि वो यहाँ पर फिर से आबाद हो जाए। कि आज का दिन जो है कश्मीरी पंडितों के इतिहास में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमें अपने घर से जलाई वतनी की तरफ धकेला गया। आज ही के दिन हमें यहाँ से फोर्सफुली निकाला गया। मैं नहीं सब यहाँ के आवाम को ब्लेम कर रही हूँ, मैं उन लोगों को ब्लेम कर रही हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ से भगाया। हमें क्या ज़रूरत पड़ी आज का दिन मनाने की? कब तक ये दिन मनाया जाएगा? ये तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ का। आज जो आप देख रहे हैं हमारे साथ कितने लोग आज यहाँ पे जुड़े और जो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए वैली में और वापस अपने घरों में रहे। जो यहाँ पहले 90s से पहले माहौल होता था, एक भाईचारा होता था, वो वापस आए। लेकिन इसके लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी तो यहाँ पे वापस शांति और तभी हम अपने घर वापस आ पाएंगे, अपने घरों में वापस आएंगे। जो ये हमारे घर आप देख रहे हैं उजड़े हुए हैं, ये फिर से आबाद होंगे। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, लेकिन हमारी मतलब बुजुर्ग हमें कहते थे हम अपने घर जाएंगे, वापस अपने घरों में जाएंगे, अपने घरों में रहेंगे। वो दर्द हमें आज भी महसूस होता है उस तरीके का कि उनके दिलों में उस टाइम क्या बीती होगी। हम छोटे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब मेरी दादी या मेरी नानी या और किसी ने ये घर छोड़ा होगा, घर छोड़ना आसान नहीं होता। घर छोड़ने का दर्द जो है वो आज भी हमारे सीने में। Thank you for watching our weekly Jammu Kashmir News Bulletin with Halima Sadia at TAG TV. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।